Hey students, so today we are going to discuss recognition criteria of trade unions under Code of Discipline. ठीक है, तो recognition criteria, right? So we all know that under Code of Discipline, provisions related to recognition of trade unions are there. Whereas in case of registration, the provisions are under the Trade Unions Act, but in case of recognition, the provisions are under the Code of Discipline. So we would discuss the recognition criteria of trade unions under the Code of Discipline. Okay, and in the next videos I would also discuss the recognition criteria under the first National Commission for Labor and the second National Commission for Labor also. So make sure that you like, share and subscribe to my channel. So let's start. Recognition of trade unions. So at the central level, the 16th session of the Indian Labour Conference held at Nainital in May 1958 adopted the following set of criteria under the Code of Discipline for recognition of trade unions. So now always remember that recognition has been given under the Code of Discipline and registration has been given under the Trade Unions Act. Okay, now let's see the first pointer. And yes, also remember that this came up in 16th session of the Indian Labour Conference, right, held at Nainital in May 1958. So remember the year. Right, now let's see the first thing. Where there is more than one union, a union claiming recognition should have been functioning for at least 1 year after registration. When there is only one union, this condition would not apply. अब देखो recognition में क्या होता है कि सारी यूनियंस क्या चाहते हैं कि हमें recognition मिले. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ए, बी और सी यूनियन है, सो तो सब आपस में लड़ेंगी, राइट, कि हाँ मुझे रिकॉग्नाइज करो. ए बोलेगा मुझे करो, बी बोलेगा मुझे करो, सी बोलेगा मुझे रिकॉग्नाइज करो. ठीक है, क्योंकि रिकॉग्नाइज यूनियन कौन सी होगी? जो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन होगी और जिससे रिकॉग्नाइज यूनियन से जो हमारा मैनेजमेंट है वो इंटरैक्ट करेगा, जो भी इश्यूज होंगे उनसे सलाह मशवरा करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट समझेगा जो रिकॉग्नाइज यूनियन है ऑब्वियसली वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम, राइट. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंटर. जहां पे देयर इज वन मोर देन वन यूनियन, अ यूनियन क्लेमिंग रिकॉग्निशन शुड हैव बीन फंक्शनिंग फॉर एट लीस्ट 1 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन. जहां पे रिकॉग्निशन क्लेम करने के लिए मोर देन वन यूनियन हो, तो द यूनियन क्लेमिंग रिकॉग्निशन, ठीक है, जो यूनियंस क्लेम कर रहे हैं रिकॉग्निशन, वो फंक्शन करनी चाहिए फॉर एट लीस्ट 1 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आज रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इस रजिस्ट्रेशन के 1 ईयर तक इनको फंक्शन करना चाहिए. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी 1 ईयर इनको फंक्शन करना चाहिए. Okay, so remember this point. So when there is more than one union, a union claiming recognition should have been functioning for at least 1 year after registration. आज registration हुआ तो इस registration के बाद भी 1 year उसे function करना चाहिए. जहां पे more than one union है जो recognition के लिए claim कर रही है. Okay, and where there is only one union, this condition would not apply. अब जहां पे एक ही यूनियन है तो वहां पे ये कंडीशन फर्स्ट अप्लाई नहीं होगी. So just remember this 1 year after registration thing. Now the second provision, let's see. The membership of the union should cover at least 15% of the workers in the establishment concerned. Membership would be counted only of those who had paid their subscriptions for at least 3 months during the period of 6 months immediately preceding the reckoning. Reckoning होता है calculation. ठीक है, reckoning is calculation, right? So now let's see. अब जो यूनियंस कर रही हैं, ठीक है, जो यूनियंस रिकॉग्निशन के लिए बोल रहे हैं कि हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, तो उस यूनियन की मेंबरशिप should cover at least 15% of the workers in the establishment concerned. ठीक है, तो जैसे एबीसी की यूनियंस है वो रिकॉग्निशन क्लेम कर रही है एक, ठीक है, एबीसी कंपनी है एक और उसकी एक यूनियन रिकॉग्निशन क्लेम करना चाह रही है, तो उसकी मेंबरशिप में एटलीस्ट 15% ऑफ द वर्कर्स ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं हमारी एबीसी कंपनी में, तो 100 का एटलीस्ट 15% उस यूनियन के पार्ट होने चाहिए, उस यूनियन के मेंबर्स होने चाहिए, राइट. तो अगर 100 मेंबर्स है तो एटलीस्ट 15 होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग. सो द मेंबरशिप ऑफ द यूनियन शुड कवर एटलीस्ट 15% ऑफ द वर्कर्स इन द एस्टैब्लिशमेंट कंसर्न. So membership should be counted only of those who had paid their subscriptions for at least 3 months during the period of 6 months immediately preceding the reckoning. Reckoning मैंने आपको बताया कैलकुलेशन होता है. अब एक बात बताओ, कई यूनियंस ऐसे भी कर सकती हैं घपलेबाजी कि बोले
कि चलो चलो तुम आज मेंबर बन जाओ क्योंकि कल कैलकुलेशन होना है, ठीक है, क्योंकि उनको 15% मेंबर्स बनाने हैं अपने, ठीक है। सो ऐसा कर सकती है ना, ऐसी मैल प्रैक्टिसेस इल प्रैक्टिसेस कर सकती हैं, राइट। तो टू स्टॉप दैट, ठीक है, ताकि ऐसी क्योंकि फिर वो क्या बोलेंगे, चलो आज आज के लिए मेंबर बन जाओ, फिर जैसी कैलकुलेशन हो जाएगी और हमें रिकॉग्निशन मिल जाएगी तब तुम चले जाना, वर्कर्स को बोल सकती हैं। तो टू स्टॉप दैट उन्होंने ये सेकेंड रूल भी दिया हुआ है ये 15% वाले के साथ साथ, दैट आप ये 15% में मेंबरशिप उन्हीं की काउंट करेंगे those who have paid their subscriptions। आपको पता है ना ट्रेड यूनियन फी होती है, ट्रेड यूनियन सब्सक्रिप्शन होता है, राइट, जो वर्कर्स पे करते हैं, जो ट्रेड यूनियन का पार्ट होते हैं। तो ये देखेंगे कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन पे किया है, अब फॉर व्हाट, फॉर एटलीस्ट 3 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेकनिंग, ठीक है। तो उन्होंने एटलीस्ट 3 months का सब्सक्रिप्शन पे किया होना चाहिए, ओके। और ये 3 months हम किस टाइम पीरियड से लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आज कैलकुलेशन हो रही होती तो आज से पहले जो 6 months हैं, राइट, प्रीसीडिंग क्या होता है, प्रीसीडिंग पीछे वाले होता है और सक्सीडिंग आगे वाला होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, दैट मेंबरशिप शुड बी काउंटेड ओनली ऑफ दोज हु हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शंस फॉर एटलीस्ट 3 months। अब 3 months कब, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेकनिंग, मतलब जो कैलकुलेशन से पहले, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जो कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं, रेकनिंग जब हम कर रहे हैं ये मेंबर्स की, ठीक है, जब हम चेक कर रहे हैं कि हाँ 15% मेंबर्स हैं उस एस्टैब्लिशमेंट के कि नहीं, तो फिर हम देखेंगे कि इन 6 months में से, जैसे आज रेकनिंग हो रही है और इससे पहले 6 months में से लोगों ने, किन लोगों ने एटलीस्ट 3 months सब्सक्रिप्शन फी पे किया है। Understood? Again, I'm reading. The membership of the union should cover at least 15% of the workers in the establishment concerned, and membership should be counted only those of those who have paid their subscriptions, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पे किए for at least 3 months। और ये 3 months पूरे साल में से नहीं लेने हैं, ठीक है, ऐसे तो आप सोचो कि 3 months कभी के भी ले लें, नहीं, ये 3 months हमें कहाँ से लेने हैं, during the period of 6 months immediately preceding the reckoning, preceding the calculation। आज calculation किया तो आज से पहले जो 6 months है उनमें से हम 3 months उठाएंगे, that have they paid the subscription, the trade union subscription for at least 3 months during the period of 6 months or not। I hope it is clear, the first 2 pointers। Now let's proceed to the next, right? Now the next pointer, अब a union may claim to be recognized as a representative union for an industry in a local area if it has a membership of at least 25% of the workers of that industry in that area, ठीक है। तो अब देखो, अब पहले तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन का के मेंबर्स का एटलीस्ट 15% मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के एनरोल्ड होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव यूनियन में, ठीक है, अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, राइट। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री। अब अगर कोई यूनियन क्लेम करना चाहती है कि वो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है फॉर एन इंडस्ट्री, फॉर अ होल इंडस्ट्री इन अ लोकल एरिया, राइट, कि वो सारे फैक्ट्रीज एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के एक लोकल एरिया में इंक्लूड करना चाहती है और उन सब की रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बनना चाहती है, देन व्हाट इज द कंडीशन, दैट इट हैज अ मेंबरशिप ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ द वर्कर्स of that industry in that area। Now did you understand यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, पहले वाले में तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर 15% वाले में कि एबीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर रिकॉग्निशन के लिए करना है क्लेम तो 15% ऑफ मेंबरशिप होनी चाहिए एबीसी ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ पे ये 25% वाले केस में हमें रिप्रेजेंटेटिव यूनियन बनना है एक इंडस्ट्री का इन अ लोकल एरिया, ठीक है। तो एक जैसे ये पर्टिकुलर लोकल एरिया है तो इसमें फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो जो भी फैक्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंडर है, ठीक है, इस लोकल एरिया में, तो वो उनको अगर इनमें से एक यूनियन को, इनकी एक XYZ यूनियन है वो करना चाहती है क्लेम कि वो इन सारी छोटे छोटे फैक्ट्रीज को इस इंडस्ट्री की इस लोकल एरिया में रिप्रेजेंट करना चाहती है, तो देन इट शुड हैव अ मेंबरशिप ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ द वर्कर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री इन द एरिया। तो इसमें हम सिर्फ एक फैक्ट्री या एक एस्टैब्लिशमेंट तक सीमित नहीं है, वी आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट वन फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट, बट वी शुड हैव द मेंबरशिप of at least 25% of the workers of that industry in the area। मतलब इस लोकल एरिया में जो भी हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्रीज है, जो भी हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उन सब की एटलीस्ट 25% मेंबर्स एनरोल्ड होने चाहिए इफ यू वांट टू क्लेम
to be recognized as a representative union for an industry in a local area. I hope it is clear. So here the percentage is 25%. Okay. Now the next one is, हाँ अब ये जरूर याद रखिएगा, जो पिछले वाला था वो एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट की मेंबरशिप से रिलेटेड था 15% वाला. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, द यूनियन इज क्लेमिंग as a representative union for an industry in a local area, right? Now the next provision is, when a union has been recognized, there shall be no change in its position for a period of 2 years, right? So this is it. So when a union has been recognized, जब एक union recognize हो गई तो फिर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years it would be the representative and the recognized union. Okay, so when a union has been recognized, there should be no change in its position for a period of 2 years. I hope it is clear. Now the next pointer is, in case of several unions in an industry or establishment, the one with the largest membership should be recognized. अब अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट या किसी इंडस्ट्री में there are several unions, there are multiple unions, there is multiplicity of unions, then the one with the largest membership should be recognized. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री में 10 यूनियन है और एक यूनियन की सबसे ज्यादा मेंबरशिप है, दैट इट हैज 10,000 मेंबर्स, so then जिसकी सबसे ज्यादा मेंबरशिप है, that should be declared as a representative union. That means that the one with the largest membership should be recognized, right? Great. Now let's move to the next point. अब देखिए, a representative union for an industry in an area should have the right to represent the workers in all establishments in the industry. अब अगर हमने किसी यूनियन को representative union बना दिया है एक इंडस्ट्री का, then ठीक है, एक इंडस्ट्री का इन द पर्टिकुलर एरिया, देन इट शुड हैव द राइट टू रिप्रेजेंट द वर्कर्स इन ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स इन द इंडस्ट्री. ठीक है, अब जैसे ये हमारी एक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं. ठीक है, अब ये सो दीज ऑल आर लाइक डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है, और हमने XYZ को बोला है कि हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है. ओके, XYZ हमारी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये जो सारे इस एरिया में जो भी रिप्रेजेंटेटिव यूनियंस है, इनकी रिप्रेजेंटेटिव जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स है, इनकी XYZ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन है. तो फिर इस XYZ के पास सारी राइट्स होंगी. इट विल हैव द राइट टू रिप्रेजेंट द वर्कर्स इन ऑल द एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो ये एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो ये एस्टैब्लिशमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो ये एस्टैब्लिशमेंट है. तो XYZ को क्योंकि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है, एक इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर एरिया की यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, तो देन XYZ would have the right to represent the workers in all establishments in the industry, right? But there is a condition to that. ठीक है, वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जो इंडस्ट्री इन एन एरिया की है वो रिप्रेजेंट करेगी जो भी सारे एस्टैब्लिशमेंट्स है उनके राइट्स को. इट वुड रिप्रेजेंट ऑल द वर्कर्स. But if a union of workers in a particular establishment has a membership of 50% or more of the workers of that establishment, it should have the right to deal with matters of purely local interest, such as for instance the handling of grievances pertaining to its own members, right? अब देखो, अब एक कंडीशन आई कि इनमें से ना ये वाला है, ठीक है, ये वाली एक एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, ये वाली की एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें एक ABC नाम की यूनियन है. ठीक है, इसमें एक ABC नाम की यूनियन है जिसकी which has a membership of 50% or more of the workers of that establishment. अभी जो ABC यूनियन है इस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट की इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो उसमें इस ABC में right there are 50% or more of the workers of that establishment, इस establishment के 50% or more workers members हैं, then इसके पास right होगी, this ABC union would have the right to deal with matters of purely local interest, such as for instance the handling of grievances pertaining to its own members. तो इस ABC के पास, क्योंकि हमने इस ABC के पास क्या right होगी कि जो भी grievances इसके इस establishment के members में हो रहे हैं तो वो उनको handle
हैंडल करेगी, जो भी इनके लोकल इश्यूज हैं, ठीक है, इनके एस्टैब्लिशमेंट के इश्यूज हैं। इंडस्ट्री के इश्यूज नहीं हैंडल करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री की इंडस्ट्री एज अ होल की रिप्रेजेंटेटिव तो हमारी XYZ है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था XYZ रिप्रेजेंट कर रही है ये सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को इस लोकल एरिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। बट यहाँ पे एक ऐसा केस आया कि इस वाले जो फैक्ट्री में, इस वाले एस्टैब्लिशमेंट में एक ट्रेड यूनियन थी ABC, जिसमें 50% और मोर ऑफ द वर्कर्स आर एनरोल्ड, तो वो अपने मेंबर्स से रिलेटेड जो भी लोकल मैटर्स हैं वो डील कर सकती है। जैसे जो भी ग्रेवियंसेस हो रहे हैं अपने मेंबर्स में इनके, तो वो ग्रेवियंसेस डील कर सकती है। रीजन क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इट हैज अ मेंबरशिप ऑफ 50% और मोर ऑफ द वर्कर्स ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। सो इट हैज द राइट टू डील विद मैटर्स ऑफ प्योरली लोकल इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल in the handling of grievances pertaining to its own members का, यानी कि बाहर वालों का, क्योंकि बाहर वालों का तो XYZ है ही representative, right? Now all other workers who are not members of that union might either operate through the representative union for the industry or seek redressal directly. अब हमने चलो बोल दिया कि ABC में 50% और more workers enrolled हैं, ठीक है, तो वो अपने लोकल इंटरेस्ट के मैटर देखेगी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ग्रेवियंसेस वगैरह। बट जो बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं जो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 50 और मोर का कंडीशन है, मे बी 30 ना हो, मे बी 50% बाकी ना हो इस वाले ABC में एनरोल्ड, तो फिर वो किसको अप्रोच करेंगे? दे वुड ऑपरेट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ऑफ द इंडस्ट्री, वो मतलब XYZ के थ्रू ऑपरेट करेंगे, राइट? XYZ के पास जा सकते हैं कि हमारे इंटरेस्ट को प्रेजेंट कीजिए, जो इस ABC का मेंबर नहीं है, राइट? और दे वुड सीक रिड्रेसल डायरेक्टली, और अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली भी इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते हैं। दे कैन सीक रिड्रेसल और सीक सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम डायरेक्टली, राइट? Now this point you need to do that only unions which observe the code of discipline would be entitled to recognition. तो जब ये code of discipline से related इन्होंने recognition से related rules निकाले, तो उन्होंने ये भी कहा the unions who have observed the code of discipline would be entitled to recognition. जो नहीं code of discipline के principles observe करेंगे उनको recognition नहीं मिलेगा इसके according. Okay, so yes, again I'm saying like, share and subscribe to my channel. That is very important so that you keep on getting updates. और अब एग्जाम नियर है तो मैं काफी सारा रिविजन अब करवाऊंगी. ओके, थैंक यू.